સંસદમાં શિયાળુ સત્ર ચાલી રહ્યું છે અને આજે સત્રની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। લોકસભા અને રાજ્યસભામાં વંદે માતરમને 150 વર્ષ પૂર્ણ થયા એ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા થવાની છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ આજે સંબોધન કરવાના છે સંસદમાં અને આજની જે ચર્ચા છે એ મોટાભાગે 10 કલાકનો સમય એના માટે રાખવામાં આવ્યો છે કે 10 કલાક સુધી આજે ચર્ચા થવાની છે। શરૂઆતની ચર્ચામાં ગુજરાતના સાંસદો પણ દેખાયા। શરૂઆતમાં જે પ્રશ્નોત્તરી કાળ હોય છે એમાં ઊભા થયા હતા પ્રશ્ન પૂછવા માટે। એના પછી 12 વાગે પ્રધાનમંત્રી સંસદને સંબોધશે એ સમય આપવામાં આવ્યો છે। એક પછી એક બહુ જ દિગ્ગજ નેતાઓ આજે સંસદમાં બોલવાના છે અને બધાની નજર ત્યાં રહેવાની છે કે નેતાઓ આજે સંસદમાં શું બોલે છે। વિપક્ષના નેતાઓએ ઘણા બધા મુદ્દા પર અત્યાર સુધીમાં હોબાળા કર્યા છે, ઘણા બધા મુદ્દાઓ ઉપર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા છે સંસદની બહાર, સંસદની અંદર। આજે 10 કલાકની એ ચર્ચા શાંતિપૂર્ણ થાય અને જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા હોય ત્યારે વિપક્ષ શું કરે છે એના ઉપર પણ બધાની નજર રહેવાની છે। આજે કેટલા નેતાઓ બોલવાના છે સંસદમાં એની વાત કરીએ। આજે ચર્ચામાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, અનુરાગ ઠાકુર, બિપ્લબ દેબ, બાસુંદી સ્વરાજ, સાબિત પાત્રા, તેજસ્વી સૂર્યા અને બીજા અનેક નેતાઓ એવા છે જે બોલવાના છે। સાથે જ રાજનાથસિંહ પણ બોલવાના છે। સંસદની શરૂઆત પહેલાં જ એ જ્યારે પરિસરમાં આવ્યા સંસદના ત્યારે પણ એમને પ્રતિક્રિયા આપી છે। એના સિવાય બહુ જ બધા વિપક્ષના નેતાઓએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે। વંદે માતરમનો જે મૂળ છે એ આજે સંસદમાં એની ચર્ચા થાય એવી પણ સંભાવનાઓ છે। વિપક્ષના નેતાઓએ સરકાર જે ઇતિહાસ છે એ ભૂલાવી રહી છે અને અત્યારે ધીરે ધીરે જે ઇતિહાસમાં જે થયું છે એમાં કંઈક નવું કરવા માંગે છે અને ઇતિહાસમાં જે થયું છે એને ભૂસી નાખવા માંગે છે એવા આક્ષેપો અને પ્રહારો પણ કર્યા છે। સંસદમાં આજે અંદર શું થાય છે એ સમય બતાવશે, પણ અત્યાર સુધીમાં જે કાર્યવાહીના દ્રશ્ય સામે આવ્યા છે, જે નેતાઓની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે તેના પર કરીએ નજર। देखिए, वंदे मातरम पे चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहां होगी। कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। तो इसलिए वंदे मातरम 150 साल हो रहा है और बंगाल की धरती से ही ये आजादी का ये गीत था। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत की विरासत है ये, भारत इसलिए आज ही इस पर चर्चा हो। मुझे लगता है ये वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ही नहीं बल्कि आने वाले 150 साल मजबूत नींव वंदे मातरम को लेकर रखने के लिए भी ज़रूरी है। पीढ़ियाँ बीती जो शायद वंदे मातरम को जानते हैं पर इसके महत्व को, इसकी एकजुटता की भावना का शायद वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी जो मे बी फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, जो इस बार लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हों, संभवतः शायद वो कभी इस भावना को नहीं समझ पाएंगे कि क्या दीवानगी थी वंदे मातरम को लेकर। आज़ादी के हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, किस तरीके की भावना को ये उजागर करता था आपके भीतर। तो मैं मानता हूँ कि युवा पीढ़ी और बेहतर तरीके से वंदे मातरम और इसके महत्व और ख़ास तौर पर इसकी भावना को समझे। उसके लिए मुझे लगता है कि आज जो सदन में बहस होने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी से विशेष तौर पर आग्रह करूँगा कि ज़रूर इस बहस को सुने, हर किसी की बातों पर ज़रूर ध्यान दें। Sir, this NYCS scheme is very good, sir, actually. This is to act the youth as a role model for the younger people, especially towards the enhancement of public ethics, probability and dignity of labor. In addition to that, sir, the very important thing, it was also envisaged to use budding generation as messengers of humanity and communal harmony. I would like to ask, sir, what program of action is there? Are you verifying the situation? Have you analyzed the progress of the work? If so, let me know, kindly let me know what exactly is the program of action envisaged to this direction. महोदय, माननीय सदस्य ने युवा की शक्ति का उपयोग के बारे में प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छा विषय है क्योंकि देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये हमारे फेवर में है।
देश के युवा ये देश की शक्ति होती है। ये देश के युवाओं को देश के राष्ट्रीय प्रवाह के साथ जोड़ के, सामाजिक एक्टिविटी के साथ जोड़ के, स्पोर्ट्स के साथ जोड़ के, विकसित भारत के संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने रखा है, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए उसके साथ जोड़ के, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा है कि देश में हमें 1 लाख ऐसे यूथ लीडर तैयार करना है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। ये भी ऐसे यूथ जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके माता पिता पॉलिटिक्स में ना हो, सामान्य बैकग्राउंड से हो, और उसमें लीडरशिप कैसे डेवलप हो, उसके लिए माय भारत के द्वारा, माय भारत एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है। NSS, स्काउट गाइड्स, NCC सब भी उसके अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं, और ये प्लेटफॉर्म में पर आज 2 करोड़ से अधिक यूथ स्वयं रजिस्टर हुए हैं। रजिस्टर होने के बाद अलग अलग टाइप की यूथ एक्टिविटी, यूथ क्लब के द्वारा वहाँ सामाजिक जागृति के साथ जुड़ना, यूथ क्लब के द्वारा सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़ना, यूथ क्लब के द्वारा स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना, यूथ क्लब के द्वारा सेवा के कार्य के साथ जुड़ना, यूथ क्लब का उपयोग करते हुए देश हमारा बहुत बड़ा है और ह्यूज डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवास करना, वहाँ ले जाना, हमारी देश की सरहदें है उसका अध्ययन करना, इस हमारे जो फर्स्ट विलेज है उसकी मुलाकात करके 1 सप्ताह तक वहाँ रहना, देश के युवा अपने स्वयं को विकसित कर सके, इसके लिए नंबर ऑफ टाइप की यूथ क्विज कंपटीशन का आयोजन करा जाता है। ये यूथ कंपटीशन के साथ जुड़ के अभी भारत सरकार ने 12 जनवरी को देश में युवा दिन मनाया जाता है। ये देश के युवा दिन के लिए 3 दिन तक 10, 11, 12 3 दिन के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग होता है। उसके लिए सार्वजनिक माय भारत के प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन होती है। एक कंपटीशन में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के युवा की एनर्जी और देश के युवा का विजन, 50 लाख से अधिक युवाओं ने ये 3 दिन के कार्यक्रम में जोड़ने के लिए क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा। उसमें से कंपटीशन में निकलते उन्होंने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करेंगे, ऐसे कंपटीशन का एक्सपर्ट लोगों के सामने प्रेजेंटेशन होगा, और उसमें जो सक्सेस होकर निकलेंगे अध्यक्ष महोदय, वो 3000 युवा दिल्ली में आएंगे, प्रधानमंत्री जी के सामने 2 दिन तक प्रधानमंत्री जी 2 दिन उपस्थित रहेंगे, और 2 दिन तक विकसित भारत कैसा होना चाहिए, युवाओं के विचार का विकसित भारत कैसा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन रखेंगे। ये युवाओं के लिए जो एक्टिविटी हो रही है वो भारत निर्माण में, विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।